Okay, till now only one of you have joined. Good morning. Smriti, where are others? Kindly inform them who join the classes. We will wait another 4 to 5 minutes so that everyone can join. Okay, till now 6 of you have joined. Okay, till now 9 of you are in this class. Am I audible to all of you? Yes, student, kindly respond. Am I audible to all of you? Okay. Okay. Okay, so let's start our classes. In the meantime, if some more student will join, then we will take them in the class. So, so we was studying about CPU scheduling. Okay, and in this CPU scheduling, in our first class, we have studied about there are so many processes, and in these process, the main work of a CPU is to select one of the process and do the processing, and in the mean
Okay, in the meantime, for the CPU scheduling, we have to take multiple decisions. A decision, not we, but now the V is CPU. CPU is mainly have to take so many decisions regarding the process involved for the scheduling. Which type of decision they have to take? I think in the previous class we have seen that there are 5 states related with the process. Okay, and those, can anyone just give me the name of all those states of the process? What are the various state of the process? Can you please give me the name of those states? Any one of you, via the chat or via the microphone, you can give your response. Just name of the state. Okay, we got one response by the chat. Primitive and non-primitive. No, I'm talking about, okay, primitive Sir, and non-primitive. प्रोसेस को बताएं, क्वेश्चन नहीं सुने सर. No, my question was. So start. Okay. Start. Start running process. You said there is a start, there is running, there is running, वेटिंग होगा सर. waiting, very good, waiting. Waiting. Okay. फिर process. या टर्मिनेट. Process. Exit. Exit. Okay, very good. So exit is right, waiting is right, running is right. So these two are not there. Instead of start, there was new state, and running तो आ ही गया. So process का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे. There was a state known as ready. Okay, when first a process come into the main memory, those states are known as ready. Okay, so 5 state होते हैं हमारे पास. First one is new, second one is ready, third one is running, fourth one is waiting, and fifth one is exit. Okay, very good. So these are all the states of the process, and for the CPU scheduling we have to take several decisions. ये decision क्या क्या हो सकते हैं? Switching करना होगा हमें running से कहाँ पे? Waiting में. When there is a need, like आपका need हो सकता है IO हो सकता है, या आपका time slice expire हो जाएगा, तो उस केस में भी हो सकता है. फिर आपका क्या हो सकता है कि आपका स्विचेस होगा फ्रॉम रनिंग टू स्टेट में, जब आपका देयर वाज नो प्रोसेस इन द सीपीयू, नो प्रोसेस अवेलेबल फॉर द प्रोसेसिंग. ओके, जब कोई प्रोसेस नहीं होगा तब हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू टेक वन प्रोसेस फ्रॉम द रेडी स्टेट एंड पुट इट इनटू द रनिंग स्टेट. ओके, और फिर आपका क्या होगा? वेटिंग से आपका रेडी स्टेट में, जब आपका इसका वर्क कंप्लीट हो जाएगा, जिस भी वेटिंग के लिए गया होगा उसका वर्क हमारा क्या हो जाएगा? वर्क कंप्लीट हो जाएगा. ओके, टर्मिनेटेड when running states, आपका जब कोई प्रोसेस का सारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट, तो क्या होगा? रनिंग से एग्जिट स्टेट में जाएगा, देन इट इज कॉल्ड एज टर्मिनेटेड. So these are various
various decision which CPU has to take. We have seen these all things, but for the reminder purpose, I talked about these things. And we have also studied about there are primitive process and non-primitive process. Okay. Now, now there is a controller. There is a module. There is a module between the ready state and running state. रेडी स्टेट और रनिंग स्टेट जो होता है, इन दोनों के बीच में एक मॉड्यूल होता है, ठीक है। इस मॉड्यूल को क्या कहा जाता है? डिस्पैचर। डिस्पैचर, डिस्पैचर का क्या काम होता है? डिस्पैचर मॉड्यूल जो होता है, gives control of the CPU to the process selected by the scheduler. तो यहाँ कौन सा शेड्यूलर काम करता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर काम करता है, और यहीं पे एक डिस्पैचर मॉड्यूल होता है। डिस्पैचर मॉड्यूल होता है जो कि क्या करता है कि एक प्रोसेस एक्स को सेलेक्ट करता है और उसको रेडी रनिंग स्टेट में लेके जाता है। तो डिस्पैचर मॉड्यूल क्या करता है? गिव्स कंट्रोल ऑफ द सीपीयू। अब ये इस प्रोसेस को क्या प्रोवाइड कर देगा? सीपीयू प्रोवाइड कर देगा। आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस स्टूडेंट। डिस्पैचर सबसे पहले कहां काम करता है? रेडी से रनिंग के बीच में काम करता है। ओके, यहीं पे आपका क्या होता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर भी काम करता है आपका। और डिस्पैचर का मेनली वर्क क्या होता है कि आपका सीपीयू का कंट्रोल हैंड ओवर करना, किसको? सेलेक्टेड प्रोसेस को प्रोवाइड करना। ये काम किसका होता है? डिस्पैचर का होता है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? काइंडली रिस्पॉन्ड। कभी कभी गेट में ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ओके, कि कौन सा ऐसा मॉड्यूल होता है जो कि हमारा किसी भी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करवाता है, तो ये डिस्पैचर मॉड्यूल होता है। अब इस मॉड्यूल में स्टूडेंट्स, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, दिस इज नॉट राइट, काइंडली रिस्पॉन्ड। हेलो हेलो, did you got my point? What is the work of dispatcher and how it works, where it works? Yes, sir. Okay, kindly respond whenever it is asked. Okay, तो जो आपका डिस्पैचर होता है, इसमें बहुत सारा वर्क इन्वॉल्व होता है। वर्क इन्वॉल्व होता है कि आपका क्या कहा मैंने, ये आपका रेडी और रनिंग के बीच में काम करता है। सबसे पहली बात तो मैंने ये कही कि रेडी और रनिंग के बीच में ये काम करेगा डिस्पैचर। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि when a process needs to be selected and we need to allocate a process to the processor, तो सबसे पहला कंडीशन इसमें क्या होगा? सबसे पहला कंडीशन तो ये होगा, whenever we can see that CPU is free, whenever we will see that CPU is free, then we have to select process and put that process into the running state. जब भी आपका CPU free हो जाएगा तो we have to select a process and put that process into the running state. तो यहाँ क्या होगा कि जब आगे हम चल के पढ़ेंगे, process has which is known as PCB.
PCB, process control block. Process control block basically stores all the information related with a process. प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे वो क्या होंगे, आपका पीसीबी में स्टोर होगा. इट मींस कि लाइक प्रोसेस आईडी क्या है, प्रोसेस की आईडी क्या है, रजिस्टर्स कौन कौन से एलोकेट किए गए हैं प्रोसेस को, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या है, प्रोग्राम काउंट वैल्यू क्या है, प्रोसेस का स्टेट क्या है, प्रोसेस का स्टेट क्या है, लाइक ऑल द अदर इंफॉर्मेशन. ओके, तो ये इंफॉर्मेशन जहां स्टोर होता है उसको कहा जाता है पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. अब इस पीसीबी में मैंने कहा कि वी हैव सो मेनी इंफॉर्मेशन इंटैक्ट विद रिलेटेड विद द प्रोसेस. तो अब जबकि किसी प्रोसेस को हम क्या करेंगे, रेडी से उठा करके स्टेट में ले जाएंगे, देन वी हैव टू चेंज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट प्रोसेस. इसको कॉन्टेक्स्ट चेंज कहेंगे या स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट कहेंगे या कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहेंगे. ठीक है, बेसिकली कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है उसका. टिल नाउ द स्टेट ऑफ दैट प्रोसेस वाज रेडी एंड नाउ सडनली द स्टेट ऑफ द प्रोसेस इज चेंज इनटू द रनिंग स्टेट. तो इसको क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. और नेक्स्ट आपका स्विचिंग टू द यूजर मोड. तो मैं यहां पे बताना चाहता हूं मोड के बारे में. वी हैव कर्नल मोड एंड वी हैव यूजर मोड. दो टाइप के मोड होते हैं हमारे सिस्टम में. कोई भी सिस्टम होता है तो वो दो मोड में वर्क कर, कर्नल मोड में या यूजर मोड में. कर्नल मोड जो होता है ये सिंपली कहा जाए एक प्रिविलेज्ड मोड है. ये एक प्रिविलेज्ड मोड है. और यूजर मोड जो होता है वो एक नॉन प्रिविलेज्ड मोड होता है. ठीक है, नॉन प्रिविलेज्ड मोड तो है जितना भी बेसिक बेसिक वर्किंग होता है किसी भी सिस्टम का वो क्या होता है, यूजर मोड ही रन करता है. तो किसी भी सिस्टम के दो मोड ऑफ ऑपरेशन होते हैं, कर्नल मोड एंड यूजर मोड. नेक्स्ट क्या होता है कि जंपिंग टू द प्रॉपर लोकेशन इन द यूजर प्रोग्राम टू रीस्टार्ट दैट प्रोग्राम. अब हमें किसी भी प्रोसेस को अगर हमें रन करना है तो देन वी हैव टू जंप इनटू द प्रॉपर लोकेशन and location will be given by the PC, program counter. कि अभी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या है, रजिस्टर्स की वैल्यू क्या है, कौन कौन से रजिस्टर्स वहां पे इन्वॉल्व हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन जब हमें मिल जाएगा देन वी कैन स्टार्ट दैट प्रोसेस और वी कैन डू द वर्किंग ऑन दैट प्रोसेस. ओके, तो ये कुछ स्टेप्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं डिस्पैचर के साथ में. तो नेक्स्ट जो अब चूंकि देयर इज जब इतने सारे वर्क हो रहे हैं द डिस्पैचर, देन देयर इज अ ultimate need of टाइम. और इसी टाइम को क्या कहा जाता है, डिस्पैच लेटेंसी. तो टाइम इट टेक्स फॉर द डिस्पैचर टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट अनदर रनिंग प्रोसेस इज नोन एज डिस्पैच लेटेंसी. एक प्रोसेस को स्टॉप करना और दूसरे को एग्जीक्यूशन में लाना, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज नोन एज डिस्पैच लेटेंसी. ओके, did you got my point? Related with dispatcher, related with what are the works we have to perform while the dispatch and what is dispatch latency.
Yes, students. सर एक बार डिस्पैच लेटेंसी वापस से रिपीट कीजिए प्लीज। काइंडली रीड एट लीस्ट वंस। ये जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है आपका, मैं क्लियर कर देता हूँ इसको एक बार। डिस्पैच लेटेंसी को एक बार आप पढ़, स्टिल नहीं समझ में आया, देन आई कैन एक्सप्लेन इट। क्या लिखा हुआ है? टाइम इट टेक फॉर द डिस्पैचर, ये डिस्पैचर के द्वारा टाइम लिया गया है टू स्टॉप वन प्रोसेस, किसी प्रोसेस को स्टॉप करना, एंड स्टार्ट अनदर रनिंग प्रोसेस। ओके, मतलब एक प्रोसेस को स्टॉप करना और दूसरे प्रोसेस को स्टार्ट करना इज नोन एज डिस्पैच लेटेंसी। इन दोनों के बीच का जो टाइम होगा, इट मींस कि अगर टी एक्स टाइम में हमारा जो न्यू प्रोसेस था रन हुआ और पुराने वाले प्रोसेस को टाइम में अगर स्टॉप किया गया था, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा यही आपका डिस्पैच लेटेंसी कहलाएगा। नए प्रोसेस को रन होने में जब फर्स्ट वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, पुराने प्रोसेस को जब हमने स्टॉप किया था, ये ओल्ड प्रोसेस से रिलेटेड है और ये न्यू प्रोसेस से रिलेटेड है। इन दोनों डिफरेंस जो होगा वही आपका डिस्पैच लेटेंसी कहलाएगा। डिड यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। ओके, वेरी गुड। नाउ what are the various scheduling criteria related with CPU scheduling? So these are certain criteria which we will study, and first one is known as CPU utilization. CPU utilization. तो CPU हम कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं? कीप द CPU busy as much busy as it is possible. हम चाहते हैं कि CPU यूटिलाइजेशन हमारा 100% हो, कभी भी हमारा CPU आइडल स्टेट में ना रहे, आइडल स्टेट में ना रहे। Then this need will be known as CPU utilization. अब कितने देर तक, मान ले जाए आपने टोटल 100 मिलीसेकंड तक सिस्टम को रन किया, इसमें सीपीयू आपका आइडल रहा 40 मिलीसेकंड तक। तो मैं आपसे पूछूंगा अगर कि व्हाट इज द सीपीयू यूटिलाइजेशन, देन व्हाट विल बी योर आंसर? Yes, student. Did you my question? Kindly answer that. Okay, one response. Sir, 60%. Yes, very good, very good. 60% will be utilization of our CPU, because CPU utilization आपका सिंपल क्या है? CPU utilization हम उसको कहते हैं जहां पे कि हमारा, ओके शुभम वांट टू, ये मेरा ये क्वेश्चन था कि वी आर रनिंग अ सिस्टम फॉर 100 मिलीसेकंड and CPU was not working for 40 millisecond, then what will be the CPU utilization? Yes, And 60. 60 क्या? 60 सेकेंड, 60 मिलीसेकंड, 60 क्या? Milliseconds, sir. 60 millisecond. Always CPU utilization come into the percentage. Okay. So हमने क्या किया कि 60 मिलीसेकंड तक आपका CPU रन किया,
60 मिलीसेकंड तक आपका क्या हुआ, सीपीयू 60 मिलीसेकंड तक रन हुआ। टोटल टाइम कितना था आपके पास, 100 मिलीसेकंड। तो अब आप इसका परसेंटेज अगर आप निकालना चाहेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा स्टूडेंट्स, 60%। 60%. 60%, not in millisecond or anything else. Okay, so 60% is the right answer for the CPU utilization for the given scenario. Okay, तो CPU utilization आपको समझ में आ गया क्या होता है CPU utilization. Next criteria is throughput. Throughput क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देंगे, number of process that completes their execution per unit time. अब मैं कह रहा हूं कि 100 मिलीसेकंड तक आपका सिस्टम रन किया, 20 मिलीसेकंड तक क्या था, वो आइडल स्टेट में था, और टोटल 50 प्रोसेस ने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया। ओके, तो हम क्या निकालना चाहते हैं, व्हाट इज द थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। तो थ्रूपुट क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेस, व्हाट इज नंबर ऑफ प्रोसेस, 50 दैट कंप्लीट्स देयर एग्जीक्यूशन पर यूनिट टाइम। तो मेरा जो अब यहां पे कहना है, डू वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज टू क्वांटिटीज, डू वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज टू क्वांटिटीज। Does our answer will be 50 upon 80 or does our answer will be 50 upon 100? Which one is right? 15 upon. I didn't got your solution. Actually, your voice was breaking or the connection was unstable. So come again. Okay. 50 upon 80. Priyanshu Kumari, answer is 50 upon 80. Okay. $50 upon 80. Prem Prakash Gupta is there is a network issue. Maybe 50 upon 80. Okay, 50 upon 80. Abhishek Kumar, Shivani Priya, 50 upon 80. Okay. So your sadly your response is wrong. 50 upon 80 is not the right answer. हमें क्या करना था, नंबर ऑफ प्रोसेस दैट्स कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन यूनिट टाइम। सो आपका ओके, सीपीयू यूटिलाइजेशन वाज ओनली फॉर, सीपीयू वाज वर्किंग ओनली फॉर 80 मिलीसेकंड। ओके, सीपीयू वर्किंग फॉर 80 मिलीसेकंड, बट आपको क्या करना था, इट इज अ नेसेसिटी ऑफ द सिस्टम टू मेक इट फॉर द 100 मिलीसेकंड. It is depending upon the situation. In this given situation, the CPU was not working for 20 milliseconds. And it is not because of anything else apart from the problem which is given. I gave the system for 100 milliseconds. So the total time which we have to consider here is 100. Okay. आपको पूरा का पूरा 100 मिलीसेकंड तक सीपीयू को दिया गया था, किसी ने वहां पे स्टॉप नहीं किया आपका। 20 मिलीसेकंड हो सकता है वेस्टेज गया होगा, हो सकता है उस दौरान प्रोसेस ही अवेलेबल नहीं था। सो वी हैव टू फाइंड आउट द थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम फॉर द टाइम विच इट इज गिवन टू ऑल द प्रोसेस। ओके, जितने भी प्रोसेस कंप्लीट हैं उनके लिए जितना टाइम गिवन था,
या उतने देर में एग्जीक्यूशन जिनको परफॉर्म करना था वही हमारा थ्रूपुट होगा। पर यूनिट टाइम में जितना नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकता था वही हमारा थ्रूपुट होगा। सो द करेक्ट आंसर इज 50/100। ओके, ओके, सो थ्रूपुट, आई थिंक थ्रूपुट सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर प्रोसेस। अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट अ प्रोसेस, जितना टोटल टाइम, सिंपली कहा जाए टोटल टाइम जितना लगेगा किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए, जब वो आपका क्या होगा, फर्स्ट टाइम को सीपीयू एलोकेट होगा, सीपीयू एलोकेट होगा, और जो जब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, इट मीन वो एग्जिट स्टेट में चला जाएगा, तो इन दोनों टाइम का जो बीच का डिफरेंस होगा वही हमारा कहलाएगा टर्न अराउंड टाइम। ओके, अमाउंट सर वॉइस नहीं आ रहा आपका। फर्स्ट टाइम जब सीपीयू एलोकेट हुआ किसी प्रोसेस को, और जब वो लास्ट टाइम अब एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया, इट मींस कहा जाए कंप्लीशन टाइम माइनस फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट विल नोन एज, आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइम जब उसको दिया गया सिस्टम में, इट मींस अराइवल टाइम। ठीक है, तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम इज नोन एज टर्न अराउंड। ठीक है, अमाउंट ऑफ टाइम टू execute a particular process is known as turnaround. Now come upon to the next criteria, waiting time. Waiting time क्या होता है? Amount of time a process has been waiting in the ready queue. मैंने आपको बताया था एक स्टेट होता है आपका क्या, रेडी स्टेट। तो आइदर आपका जो प्रोसेस होगा या तो वो रनिंग कर रहा होगा, या फिर वो क्या कर रहा होगा, वेट कर रहा होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वेटिंग टाइम ऑफ अ प्रोसेस। तो वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, मैंने एक क्वांटिटी आपको बताई थी ना, बर्स्ट टाइम करके, बर्स्ट टाइम। यस स्टूडेंट, Yes, sir. बर्स्ट टाइम क्या होता है, बर्स्ट टाइम इज दैट अमाउंट ऑफ टाइम विच अ प्रोसेस नीड्स अ प्रोसेसर टू कंप्लीट इट्स प्रोसेसिंग। ओके, बर्स्ट टाइम क्या है, वो अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड है जितना कि उसको सीपीयू का चाहिए होगा, सीपीयू का टाइम उतना एग्जीक्यूशन होने के लिए चाहिए होगा, दैट इज नोन एज बर्स्ट टाइम। तो आपका टोटल टाइम जो वो एग्जीक्यूशन होने के लिए लगाएगा, इट मींस कि कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, इतना टाइम तो वो सिस्टम में बना हुआ रहेगा, इतना देर वो सिस्टम में बना हुआ रहेगा ना स्टूडेंट्स। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम मतलब कि जब वो फाइन एग्जिट किया और जो वो फर्स्ट टाइम सिस्टम में आया, अराइव किया, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, इतना देर क्या होगा, किसी न किसी स्टेट में आइदर रेडी,
रनिंग या वेटिंग स्टेट में रहेगा, ठीक है ना। इतने देर वो किसी न किसी स्टेट में रहेगा हमारा प्रोसेस। तो कंप्लीशन टाइम एंड अराइवल टाइम का जो डिफरेंस होगा, इसको मैंने क्या कहा था, इट इज नोन एज टर्न अराउंड टाइम। लेकिन टर्न अराउंड टाइम में आए तो आपका बर्स्ट टाइम इंक्लूडेड होता है। बर्स्ट टाइम क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। Okay, I think the slide is very much filled upon, so I am clear it out. तो जो टर्न अराउंड टाइम होता है, टर्न अराउंड टाइम होता है, दैट इज कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब कंप्लीशन टाइम क्या होगा, जब वो फाइनल एग्जिट कर रहा होगा, और अराइवल टाइम क्या होगा, जब वो फर्स्ट टाइम आपका रेडी स्टेट में आया, ठीक है। तो एग्जिट और रेडी के बीच में वो क्या करेगा, रनिंग भी करेगा। और रनिंग को ही हमने क्या बोला था कि इट इज नोन एज बर्स्ट टाइम। तो अगर हमको वी हैव टू फाइंड आउट द वेटिंग टाइम ऑफ अ प्रोसेस, देन हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम करेंगे, तो वी विल गॉट दैट वेटिंग टाइम ऑफ अ प्रोसेस। Okay, student? Yes. Prem Prakash Gupta, you are absolutely right. A processor need maximum time for execute a program is burst time. A little bit mistake you have done here. And not a processor, a process need maximum time for execute a process. Okay, otherwise it is very much right. ओके, तो हमारा वेटिंग टाइम वी कैन हाउ वी कैन कैलकुलेट, जैसे हमारा क्या होगा कि वी विल स्टडी अबाउट द गैंट चार्ट। हम लोग गैंट चार्ट के बारे में आगे जाके पढ़ेंगे, देखेंगे। कोई बहुत टिपिकल नहीं है गैंट, बट इट इज वेरी मच इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द वेरियस एल्गोरिथम रिलेटेड विद सीपीयू शेड्यूलिंग। ओके, सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, but it is not very complex. Okay, important है, complex नहीं है। So by the help of Gantt chart you can find out the completion time, arrival time तो आपको given होगा किसी भी process का, and via which you can find out the waiting time of each and every process. तो यहीं पे अगर हम कहें कि have another term also known as average turnaround time and average waiting time, तो किसी भी सिस्टम का आप एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड कर सकते हैं। एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, समेशन ऑफ ऑल द टर्न अराउंड टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस, ये क्या हो जाएगा, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम अगर हम निकालना चाहेंगे तो वो कैसे निकलेगा, so you can find out the average turnaround time as well as average wait time. Okay, तो अभी तक कितने क्राइटेरिया आपको किसी भी सिस्टम के लिए बताए गए हैं सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए। आपका पहले तो सीपीयू यूटिलाइजेशन, नेक्स्ट क्या है, थ्रूपुट,
Okay, Shubham is saying that screen is not visible. Is screen is not visible to all of you? I'm asking, is screen is not visible to all of you? Yes, student, kindly respond. Yes, sir. मैंने पूछा स्क्रीन विजिबल है सभी को या दिक्कत हो रही है? क्योंकि कनेक्शन Yes, sir. कट जा रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है मुझे यहाँ। तो अभी तक हमने बहुत सारे टर्म पढ़े जिससे कि आप शेड्यूलिंग Sir. क्राइटेरिया। यस यस, किसी को कुछ कहना है? Hello, am I audible to all of you? Yes, sir. ओके, सो हमने अभी वेरियस पॉइंट्स देखे रिलेटेड विथ सीपीयू शेड्यूलिंग। लास्ट पॉइंट जो उसमें है दैट इज नोन एज रिस्पॉन्स टाइम, दैट इज नोन एज रिस्पॉन्स टाइम। तो रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? रिस्पॉन्स टाइम ये होता है कि अमाउंट ऑफ इट टेक्स from when a request was submitted until the first response is produced, but it is not talking about the output। मतलब कि आपको जो फर्स्ट रिस्पॉन्स कब मिला, फर्स्ट रिस्पॉन्स कब मिला। फर्स्ट रिस्पॉन्स हो सकता है कि इट मीन्स दैट फर्स्ट टाइम आपको सीपीयू कब एलोकेट हुआ। किसी भी सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइम सीपीयू कब एलोकेट हुआ, नोन एज रिस्पॉन्स टाइम। ओके, रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। तो जो इंटरैक्टिव सिस्टम होते हैं हमारे, उनमें रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? बहुत लेस होता है। या हाईली इंटरैक्टिव जो सिस्टम होते हैं वो जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, सो दीज आर वेरियस क्राइटेरिया फॉर अ सीपीयू शेड्यूलिंग।
ओके, सभी को क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, प्लीज गिव योर रिस्पॉन्स। सर रिस्पॉन्स टाइम फिर से रिपीट कीजिए ना सर। रिस्पॉन्स टाइम ये हुआ कि जैसे you was waiting for a bus. Okay, you was waiting for a bus, and in that route there are several buses. बहुत सारे बस हैं, आपको 9 o'clock पे भी बस मिल जाएगा, 9:15 पे भी बस मिल जाएगा, 9:30 पे भी मिल जाएगा, 9:40 पे भी मिल जाएगा। ओके, तो रिस्पॉन्स टाइम क्या हुआ कि जब आपको सबसे पहली बार बस कब मिली, तो ये कहलाएगा आपका रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, कि जब आप सीपीयू फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्ड कर रहा होगा, फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्ड कर रहा होगा, तो वो क्या कहलाएगा? रिस्पॉन्स टाइम। तो अगर हम चाहते हैं कि एक इंटरैक्टिव सिस्टम डेवलप करें, तो उसमें क्या होता है कि वी वांट दैट द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ दैट सिस्टम इज वेरी लेस। रिस्पॉन्स टाइम क्या होना चाहिए? बहुत लेस होना चाहिए उस सिस्टम का। ओके, यस, रिस्पॉन्स टाइम समझ में आया? यस सर। ओके, सो वी विल प्रोसीड फ्रॉम हियर। अब मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पे कि व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर अस, थ्रूपुट सिस्टम का ज्यादा होना चाहिए या थ्रूपुट सिस्टम का कम होना चाहिए? थ्रूपुट हाई होना चाहिए या थ्रूपुट लो होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए सर। हाई होना चाहिए वेरी सर। गुड, वेरी गुड। थ्रूपुट क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। नेक्स्ट, अराउंड किसी भी सिस्टम का हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए? लो होना चाहिए सर। लो सर। टर्न अराउंड टाइम क्या होना चाहिए हमारा? लो होना चाहिए। लो। नेक्स्ट, वेटिंग टाइम हमारे सिस्टम का क्या होना चाहिए? हाई या लो? वेटिंग टाइम सर मिनिमम होना चाहिए। इट मींस लो होना चाहिए। यस सर, वेटिंग टाइम। Yes, यस yes. सर। लो होना चाहिए। रिस्पॉन्स टाइम कितना क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए? सर वो भी लो ही होना चाहिए। लो होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या है? हाई थ्रूपुट होना चाहिए, मिनिमम टर्न अराउंड टाइम होना चाहिए, मिनिमम वेटिंग टाइम होना चाहिए, मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए। ओके, सभी को क्लियर है ये पॉइंट? चलिए, सर सीपीयू तो यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होना चाहिए। हाई होना चाहिए। यस यस, वही बात मैं यहाँ पे Yes, कह sir. रहा हूँ कि शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो होना चाहिए वो ऑप्टिमाइज कब होगा? जब हमारा हाई सीपीलाइजेशन होगा, हाई थ्रूपुट होगा, मिनिमम टर्न अराउंड टाइम होगा, मिनिमम वेटिंग टाइम होगा, मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम होगा। सो आई थिंक यू गॉट ऑल द पॉइंट इन द प्रीवियस स्लाइड. So now we can proceed with the examples. अब हम एग्जाम्पल्स या वेरियस जो आपके एल्गोरिथम है उसकी तरफ बढ़ सकते हैं, सीपी शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम में मैंने पहला एक बात तो बताया था आपको कि देयर आर नॉन प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग,
and there are primitive CPU schedule. ये तो सभी को पता है ना स्टूडेंट्स। नॉन प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है, प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है, पता है सभी को? Yes, student, kindly respond via the chat box or via the microphone. Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो हमारा पहला जो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है और जो सबसे आसान है, तो आप सभी ने एक चीज तो देखा होगा ना, सभी ने अपने लाइफ में ये चीज देखा है ना, क्यू। क्यू सभी ने देखा है ना? Yes, sir. क्यू होगा, क्यू में क्या होता है कि those who are coming first come are going out first, तो इसी को नाम दिया गया है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, FCFS। मैं यहाँ पे बात बता दूं, FCFS जो आपका शेड्यूलिंग होता है, ये प्योरली नॉन प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूल, प्योरली, मैं एक वर्ड जोड़ रहा हूं यहाँ पे, प्योरली नॉन प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूल, ठीक है? तो नॉन प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग है, इट मींस इफ अ प्रोसेस will get a chance to enter into the CPU, then it will leave that CPU only after its work is completed, exit state में ही वो बाहर जाएगा CPU। ओके, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या होता है, एक नॉन प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग है। और यहाँ पे जो प्रोसेस सबसे पहले हमारे सिस्टम में आता है, फर्स्ट आता है सिस्टम में, उसको हम फर्स्ट सर्व करते हैं, फर्स्ट सर्व करते हैं, ठीक है? ये एक बहुत ही सिंपल होता है सीपीयू शेड्यूलिंग, इजी इंप्लीमेंट होता है, बट हम आगे चल के और देखेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में। तो मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में या प्रीवियस टू प्रीवियस स्लाइड में एक बात कर रहे थे कि वी विल हैव टू ड्रॉ दी गैंट चार्ट। गैंट चार्ट, गैंट सिंपली क्या होता है, यस स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा आप, गैंट चार्ट क्या होता है आपका, एक सिंपली टाइम रिप्रेजेंटेशन है कि किस प्रोसेस को किस टाइम में सीपीयू मिला। ये हो गया टाइम एट विच द CPU is allocated to process X, and this J is the time at which the process is taken, process has left that CPU, process has left that CPU। तो इसी में जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये कहा जाए कि एक सिंपल टाइम एनालिसिस है, टाइम एनालिसिस है टू एंटर इन दैट सीपीयू एंड लीविंग दैट सीपीयू। तो इसी का जो टाइम एनालिसिस किया जाता है वाया द हेल्प ऑफ गैंट चार्ट किया जाता है। ओके, वाया द हेल्प ऑफ गैंट चार्ट किया जाता है। चलिए, तो I will help you to find out various terms related with the how we can depict various terms from the Gantt chart. Okay, so देखिए यहाँ पे हम मान के ये चल रहे हैं कि ये मान के चल रहे हैं कि जो भी हमारा यहाँ पे प्रोसेस है सभी 0th टाइम पे हमारे सिस्टम में आया है, 0th टाइम पे हमारा सिस्टम में आया है। अब मैं एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या होगा कि वी हैव सो मेनी प्रोसेस विच केम एट द सेम टाइम, 0th टाइम पे सभी आए हैं सिस्टम में हमारे। तो अब क्या होगी कि
यहाँ पे सिंपली एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया। कॉन्फ्लिक्ट क्या अराइज हुआ कि वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट, दैट विच प्रोसेस वी विल एलोकेट टू द सिस्टम, ओके, सो दैट कि ये स्मूथली चले। तो मैं यहाँ पे एक बात बोल रहा हूँ कि इफ वी हैव टू or more than two process came into the system at the same time, then we will select that process which has less process ID, जिसका प्रोसेस आईडी का वैल्यू लेस होगा, हम उस प्रोसेस को पहले सीपीयू एलोकेट करेंगे। ओके, तो यहां पे देखिए वी हैव P1, वी हैव P2, वी हैव P3, 3 प्रोसेस है हमारे पास, सभी 0th टाइम पे आए हैं इसमें। तो क्या होगा, यहाँ पे 0th टाइम में आए हैं तो हम किसको सबसे पहले प्रोसेस एलोकेट करेंगे, 0 को। P0 को कब एलोकेट होगा, चूंकि ये 0th टाइम पे आया है तो 0th टाइम पे इसको एलोकेट हो जाएगा। और कितने देर के लिए इसको सीपीयू का रिक्वायरमेंट था, चूंकि मैंने कहा था कि आपका जो फर्स्ट कम सर्व है FCFS है, ये एक नॉन प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग है, नॉन प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग है। सो जैसे ही इसको सीपीयू एलोकेट होगा तो टिल ये कंप्लीशन तक सीपीयू को होल्ड करके रखेगा। तो इसको 24 यूनिट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड था, तो ये क्या करेगा, 24 यूनिट तक क्या करेगा, सीपीयू को इंगेज करके रखेगा। तो 0 से 24 तक ये अपना काम करेगा। गेट इट, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट अब क्या हो गया, नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, यहाँ पे नेक्स्ट ये हुआ कि आपका जो सीपीयू का वर्क था यहाँ पे रिलेटेड विथ P1, वो क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो इट मींस कि P1 अब सिस्टम को छोड़ के चला गया। द वर्क ऑफ P1 इज कंप्लीट, द वर्क ऑफ इज कंप्लीट। तो हम क्या करेंगे, P1 को अब कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, P1 है, P2 है। अब ये भी 0th टाइम पे ही आए थे, तो 0th टाइम पे आए थे तो फिर से कॉन्फ्लिक्ट है। हम किस प्रोसेस को सेलेक्ट करेंगे, यस स्टूडेंट, P2 को सर। P2 को सेलेक्ट करेंगे। P2 को सेलेक्ट करेंगे, कितने देर के लिए इसको सीपीयू एलोकेट करेंगे, 3 टाइम के लिए सर। 3 टाइम के लिए। तो 24 से लेके कहां तक एलोकेट होगा, 27 तक। तो P2 का भी काम अब कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब क्या बच गया, सिर्फ P3। तो P3 को किसी और के साथ देना ही नहीं है, तो वी हैव नो चॉइस अदर देन टू सेलेक्ट P3। तो P3 को हम अब सीपीयू एलोकेट कर देंगे। कब एलोकेट करेंगे, 27 पे एलोकेट करेंगे। कितने देर के लिए एलोकेट करेंगे, 3 यूनिट के लिए एलोकेट करेंगे। तो कब तक जाएगा, 27 + 3 इज 30, 30 के लिए एलोकेट हो गया। तो अब देखिए, अब मैंने क्या कहा था, मैंने एक बात आपको कही थी कि आपका क्या होता है, देयर आर सो मेनी टर्म। मैंने इससे पहले ही कहा कि अराइवल टाइम क्या है सबका, 0 0 0। नेक्स्ट हमको क्या कैलकुलेट करना रहता है, कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम हम कैलकुलेट करना होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत जरूरी है स्टूडेंट। हम क्या करेंगे, कंप्लीशन टाइम में गैंट चार्ट को फ्रॉम बैकवर्ड देखना स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम बैकवर्ड देखना स्टार्ट करेंगे। तो P3 कब कंप्लीट हुआ है स्टूडेंट, कब कंप्लीट हुआ है P3 कब कंप्लीट हुआ है, 30 पे सर। 30 पे। P2 कब कंप्लीट हुआ है,
27. 27 एंड 1 कब कंप्लीट हुआ है? 20। 24. तो ये हो गया कंप्लीशन टाइम। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट? नाउ नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट टर्न अराउंड टाइम फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस। तो टर्न अराउंड टाइम के लिए मैंने क्या कहा था? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 24 minus 0 will be 24, 27 and this is 30. Any problem? Yes, student. Any problem? No, sir. Next turn which we have to calculate is waiting time. Waiting time के लिए मैंने क्या कहा था? Turn around time minus burst time. टर्न अराउंड टाइम कितना है? 24। यहाँ भी बर्स्ट टाइम है 24। तो वेट कितना देर करना पड़ा इसको? 0। अब यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम क्या? 27। बर्स्ट टाइम कितना है इसका? 3। 27 minus 3 will be 24। नेक्स्ट P3 के लिए कैलकुलेट होगा? टर्न अराउंड टाइम इज 30 एंड बर्स्ट टाइम इज 3। देन क्या हो जाएगा इसका वेटिंग टाइम? 27। तो अब देखिए वेटिंग टाइम फॉर P1 इज तो हमारा भी 0 आया है। वेटिंग टाइम ऑफ P2 इज 24, हमारा भी 24 आया है। एंड वेटिंग टाइम P3 इज 27, तो हमारा भी 27 आया है। ओके, तो अगर हमें बोले कि नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम, तो मैंने क्या बोला था एवरेज वेटिंग टाइम के लिए स्टूडेंट? समेशन ऑफ वेटिंग टाइम ऑफ ऑल द प्रोसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ प्रोसेस यहाँ पे कितने हैं हमारे स्टूडेंट्स? 3। अब 3। इनका अगर हम सम करें तो कितना आएगा? 51 आएगा। Yes, sir. 51 divided by 3 will be 17। 17. 17 आ रहा है यहाँ पे। 24 plus 27 divided by 3 will be 27। उसी तरह से आपको बोला जाए एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए, तो कैन यू कैलकुलेट दैट? Yes, sir. Kindly find it out and please respond. 27, sir. 27, सभी का 27 आ रहा है। Yes, sir. सभी का 27 आ रहा है स्टूडेंट? चलिए, तो आई थिंक all of you got the concept of working of FCFS, how it is work and how the various term related with FCFS. What will the throughput of this system? What will the throughput of this system is, students?
यही होगा थ्रूपुट। नेक्स्ट यस ओके। नाउ जो हमारा प्रीवियस सिनेरियो था उसमें क्या था कि हमारा पहले प्रोसेस हमारा जो था प्रोसेस आईडी यहाँ पे क्या था कि P1 P2 P3 और बर्स्ट टाइम क्या था हमारा 24 3 एंड 3। हमने क्या कहा था अराइवल टाइम 0 0 0 इस टाइप से था। तो हमने वहां पे क्या किया था गैंट चार्ट में, ये कौन है इनफिक्स हॉट 9 गेट आउट ऑफ माय क्लास एंड कम विथ योर ओरिजिनल नेम। अगर तो हाँ, अगर हम एक प्रॉब्लम होता है हमारा FCFS के साथ जिसको कहा जाता है कॉन्वॉय इफेक्ट। कॉन्वॉय इफेक्ट। अब अगर मैं एक सिनेरियो दूं, ध्यान थोड़ा सुनिएगा कि एक हमारा मान लिया जाए टनल है, एक हमारा टनल है जिससे हमें पास करना है एंड इट इज वेरी ह्यूज टनल, मतलब 5 किलोमीटर का एक टनल है, ठीक है, 50 किलोमीटर का ये एक टनल है। और आपका क्या है, आपका व्हीकल, आपका जो व्हीकल है उसका स्पीड क्या है, उसका स्पीड है मानते हैं 90 किलोमीटर पर आवर। और वहीं पे एक बड़ी सी क्या कहा जाए, एक बड़ा सा लॉरी है या एक ट्रक है जिसका स्पीड है कितना 35 किलोमीटर पर आवर। एंड दिस टनल इज वन वे, दिस टनल इज वन वे। तो अब मैं दो सिनेरियो आपको दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। सिनेरियो वन है, सिनेरियो वन है जिसमें क्या हो रहा है कि आपका जो व्हीकल है वो सिनेरियो वन में आगे है एंड दैट बस इज बिहाइंड यू। ओके, दिस इज सिनेरियो वन। और सिनेरियो टू में क्या है, सिनेरियो टू में है कि बस है या ट्रक जो है वो आपसे आगे है एंड योर व्हीकल इज राइट हैंड ऑफ दैट ट्रक। Then tell me what will the time taken by you to come out this tunnel in scenario 1 and what is the time taken by you to come out of this tunnel in scenario 2? Kindly respond. It is a simple aptitude question. You can give your response by the microphone or by the chat box also.
I gave you two scenario, and I gave you all the datas written this, and also with all the assumption in this scenario. Yes, and kindly respond the solution of scenario 1 and scenario 2. And also respond if you're not able to solve this question. अगर नहीं भी आ रहे तभी बता दीजिए. I will give you the solution. Okay, maybe we got a response via the chat or not able to solve. Okay, Apurva, okay. Okay, no problem. It is not very essential, but it is not very tough. Okay, so can anyone solve this question? Can anyone solve this question? Kindly respond in 1 minute with solution that in scenario 1, this much time will be taken, and this scenario 2, this much time will be taken. इसीलिए मैंने पहले ही कहा था ये परफेक्ट सॉफ्टवेयर है, इसलिए तुम लोग इसको डाउनलोड करो अपने आईएससी लॉगिन में। ठीक है जवाब? Those who are able to solve, respond in 1 minute. We will wait only 1 minute for the solution. I give you ample amount of time to solve this. सुमित कुमार, क्या कैलकुलेट करना है? Calculate क्या करना है? You was when I was discussing this question, Sumit. I was discussing this question 5 minutes before. Where you was? Huge network issue from my side or your side? Your side. Okay. Okay, so don't jump into it. Let's solve this question. Okay, let's solve. It is not very typical. So in scenario 1, we have a case that when our car or our vehicle was ahead of that truck. Okay, so the length of that tunnel was how much? 50 kilometers.
And I was asking that how much time will it take for me to that vehicle to complete the journey of the tunnel. So 90 kilometer divided by the speed of my vehicle, which was 5.90, it will be approx 1 point something, 1.42, I think. Yes, 1.42, or in approximation 1.43, 1.43 hour, or precisely if I'm talking about, then it will be 85 minutes in whole it will to complete that journey in scenario 1. And in the scenario 2, due to the the one way restriction of this tunnel, that I can't overtake this so the speed of my vehicle will be restricted by this bus truck, and the speed of this truck was only 35 kilometers. Then I will not be able to overspeed this truck, and the speed of my truck or speed of my vehicle will be only 35 kilometers per hour. Okay, so in this scenario, okay, I think, okay, 50 upon 90 will be only 0.55, and precisely if I'm talking about, then it will be 33 kilometers. And 50 upon 35 will be 1.43, and the value will be 85 minutes. Okay, here the answer is 33, and here the answer is 85. So in scenario 2, due to the limitation that I cannot overtake this truck, I have to spend more time, which is precisely I am talking about, then it will be 52 minutes more. Okay, 52 minutes more. So here the thing which I do share with you, that due to the limitation that I will be busy my CPU by a large process, then short process which is have a very small burst time, they will have to wait for that process which is very large to get completed, so unnecessary I have to wait so much long, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि चूंकि जो हमारे स्मॉल प्रोसेस है बाय द बर्स्ट टाइम, फर्स्ट का है 24, सेकंड का है 3, थर्ड का है 3, दिस इज P1, दिस इज P2, दिस इज P3। अब अगर हम P2 को पहले मौका दें, P2 हम पहले एग्जीक्यूशन के लिए मौका दें, देन हम P3 को मौका दें, तो P2 को पहले हम मौका देंगे तो क्या है, सारे के सारे 0 पे आया है, तो क्या होगा, P2 कहां से कहां तक रन करेगा, 0 से लेके कहां तक रन करेगा, 3 यूनिट इसको रिक्वायर्ड है, तो 0 से लेके 3 तक रन करेगा। P3 कहां तक रन करेगा, 3 लेके 6 तक रन करेगा। तो लास्टली हमारे पास अब और कोई प्रोसेस है नहीं, तो हम क्या करेंगे, P1 को मौका देंगे। तो क्या आएगा इस केस में, अगर हम कंप्लीशन टाइम के बारे में बात करेंगे तो P1 का कंप्लीशन टाइम कितना हो जाएगा 30, P2 का कितना कंप्लीशन टाइम हो जाएगा यस स्टूडेंट 3, एंड P
ओके, तो वी वाज टॉकिंग अबाउट द कंप्लीशन टाइम। अब अगर हम बात करें टर्न अराउंड टाइम के बारे में, तो टर्न अराउंड टाइम मैंने क्या बोला था? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम दिस विल बी 30, दिस इज 3 एंड दिस इज 6। एंड व्हाट इज अबाउट द वेटिंग टाइम? वेटिंग टाइम अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या बोला था मैंने? वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो वेटिंग टाइम इसका कितना हो जाएगा? 6, इसका कितना हो जाएगा? 0, और इसका कितना हो जाएगा? 3। Yes, student, did you got my point? So now we want to calculate the average waiting time of our system. Average waiting time of our system. तो कितना हो जाएगा? 6 plus 0 plus 3. तो कितना हो जाएगा? Average divided by number of systems. It will be 3. In previous case, what is the value of average waiting time? 70. Yes, very good. Previously we was getting average waiting time was 17, and in this time it is 3. Previously it is about 6 times higher in the previous case. 6 times higher आ रहा था हमारा previous case में precisely, मतलब 5 point something times higher है। तो ये केस कहा जाए, ये केस को हम बेसिकली कहते हैं दिस इज ड्यू टू द रीजन ऑफ कॉन्वॉय इफेक्ट। कॉन्वॉय इफेक्ट होता है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आता है आपका किसमें? FCFS में ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो कॉन्वॉय इफेक्ट को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? अगर हमारा कोई प्रोसेस है, वेरियस प्रोसेस है हमारे पास जो कि एक ही टाइम पे आ रहे हैं, तो उसमें जो बर्स्ट टाइम का है, रिलेटिवली शॉर्ट बर्स्ट टाइम का है, हम उसको पहले मौका देते हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ कॉन्वॉय इफेक्ट के प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए। FCFS तो नॉर्मली जैसा मैंने पहले बताया वैसे ही वर्क करेगा एग्जैक्टली, बट FCFS में प्रॉब्लम क्या होगा? अगर लार्ज प्रोसेस को हम पहले शेड्यूल कर रहे हैं स्मॉल प्रोसेस से, तो वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो। ओके, सभी को समझ में आया? सर यस। सर वो 6 आप क्या मतलब वो कन्वे इफेक्ट जो टाइम वो कन्वे इफेक्ट होता है वो 6 कैसे आएगा सर? मैं ये बता रहा था कि प्रीवियसली जो हम लोग को एवरेज वेटिंग टाइम आया था प्रीवियस सिनेरियो में, इससे पहले जो हमने रन किया था ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना था एवरेज वेटिंग टाइम? 17 दिख रहा है। और अभी हमारा एवरेज वेटिंग टाइम कितना आ रहा है? 3 है ना। तो मैंने वही बात की कि हमारे Yes, यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर हम बात करें तो हमारा सिस्टम कितना इफिशिएंटली वर्क कर रहा है। पहले हमारा जो 17 आ रहा था उसको हमने रिड्यूस करके अब क्या कर दिया? 3 कर दिया। तो हमने जब ऑप्टिमल शेड्यूलिंग क्राइटेरिया पढ़ा था उसमें मैंने क्या आप लोगों ने पहले बताया था कि एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी लेस या मिनिमम होना चाहिए, है ना। तो वही हम कर रहे हैं, अपना एवरेज वेटिंग टाइम को क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। दिस वाज द प्रॉब्लम ऑफ FCFS। उसको हमने रिड्यूस करने का तरीका बताया कि हम कैसे उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ओके यस तो FCFS में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? यस स्टूडेंट, किन्हीं को प्रॉब्लम है देन प्लीज टेल मी, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट एट दिस मोमेंट। होप सो किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं होगा FCFS में। तो नेक्स्ट हम शेड्यूलिंग की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो शेड्यूलिंग है हमारा विच इज नोन एज SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूल। SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो इसमें क्या करते हैं, एसोसिएट विथ ईच प्रोसेस द लेंथ ऑफ इट्स नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट। जितने भी हमारे प्रोसेस होते हैं ना, अभी आपको जो टेबल दिया गया था उसमें क्या दिया गया था, P1 है, P2 है, P3 है, हर एक का बर्स्ट टाइम आपको गिवन था। तो वही बात कर रहा है, एसोसिएट विथ प्रोसेस, ईच प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड क्या होता है, उसका बर्स्ट टाइम। ठीक है, यूज दिस लेट टू what happens? Q, sigma, delta, Q naught. So this is what finite set of states. Yes, student, from next class we will start from here because I know that there is a problem with the audio and video. Okay. As I told you that this is all because of net connection. Okay. On seeing the symbol is there. See, on a state A, seeing the symbol is. Yes, student, I provide the link for today's attendance. Kindly fill it up. And from next class, we will start from here only. And if you have any doubt regarding with today's class, you can tell me. Kindly do study, and the book which I prefer for subject is Galvin in your
Google Classroom also, I will provide you the soft copy of that book. But I want to inform you that this is very important subject. So it will be very good if you purchase a book for this subject. And Galvin book is very much complete this regard. So make a purchase for that. Okay, 14 of you have responded, and right now 23 of you are here. We have written here, we have made an example. This is the example. And using we are estimating what is the budget, what is the corporate, these are the next is what is funds. The funds are the what? Here, these are what all these are what. So do you have any query related with this subject or topic till we studied? I will upload all these class video on the VCS platform. So in the meantime, if you have missed anything, then you can check there also. Okay, thank you all of you. Have a nice day. From next class, we start from here. As you have no query, then I'm ending this class for all of you. Have a nice day.